Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia Wahid and you are on the channel of Medicare. So welcome back to this channel once again. So as you know, we have started the practicals of different subjects of pharmacy. First we have covered the theory part, then we have started the practicals. So as you have known that we have covered the first practical of pharmacognosy, and the first practical was about the components of the microscope. So we have seen the detail of it. We have seen there are three parts, three major classification of the parts of microscope. First is the mechanical parts of it, illuminating parts of microscope, and lastly are the magnifying parts of the microscope. So we have divided them and then we have seen the whole detail of every part, and we have discussed their uses and what is the purpose of these parts. We have discussed all of that, and we have also seen that how to use a microscope. So all of these things are covered in the previous lecture, but now in today's lecture we are going to start the study of crude drugs. So now you have to study every daily life crude drugs which are used in the kitchen, and they are very useful for treating various things, for treating cold, cough, for treating any kind of inflammation and kind of infection. So that they are very helpful for you. So the first crude drug that we are going to start is a cinnamomum. As you can see in the picture, this is a cinnamomum. It is the bark of a plant. So we will study their microscopic characteristics, their microscopic characteristic. We will study their uses, their constitution, their scientific name or family name. So let's start the lecture. So what is a cinnamomum? Cinnamomum scientific name is 3. Actually it has a lot of scientific names, like it have more than 500 species. So every species have a specific scientific name. So you cannot remember the name of all the species of cinnamomum, but just you can remember the 3 of them. And if you could not, just only remember the at least the one name only. So I have written the 3 names whose spelling is very same and easy to remember. So you can remember it like Cinnamomum zillensium, Cinnamomum lurei and Cinnamomum acacia. अकासिया को आपने इससे याद करना है क्योंकि इससे हम सिनामोमम का तेल जो है वो भी लेते हैं. वोलेटाइल ऑयल जो है वो इसी वाले स्पीशीज से आता है. सो इसको याद करना इजी है, ठीक है. तो ये थे इसके फैमिली नेम. अब साइंटिफिक नेम. अब आते हैं इसका फैमिली क्या है. आपको पता है कि हर जो क्रूड ड्रग है वो एक फैमिली से आ रहा है, एक जीनस से आ रहा है, और फिर आगे वो फिर डिवाइड होता है, ठीक है, हर एक स्पीशी के अंदर. बट इन सब की एक फैमिली है. लाइक जो मैंने कहा कि इसकी 500 स्पीशीज़ हैं, तो उन 500 स्पीशीज़ की एक फैमिली बन जाती है. ये 500 स्पीशीज़ मिल के एक फैमिली नेम बनाते हैं, और वो कौन सी फैमिली नेम है, वो है ल्यूरेसी, ठीक है. अब जब भी कोई आपसे कहेगा कि ल्यूरेसी किस स्पीशी का फैमिली नेम है, तो आपको पता होगा कि ये सिनामोमम का फैमिली नेम है, ठीक है. अब इसके साइंटिफिक नेम और इसकी फैमिली नेम, इन दो को याद कैसे रखना है, ठीक है. इसके पार्ट्स कौन सा यूज़ हो रहा है वो तो आप इसकी पिक्चर देख के भी बता सकते हैं, ठीक है, वो तो आप विजुअली याद कर सकते हैं. बट जो फैमिली नेम याद रखना होता है या जो साइंटिफिक नेम याद रखना होता है, ये चीज़ होती है कि आपने मेमोराइज़ करना है, ठीक है. इसके लिए कोई हिंट वगैरह नहीं होता है या इसके लिए कुछ आप कर नहीं सकते. ये रट्टा वाला काम है. सो रट्टा भी किस तरह से लगाना है हम निमोनिक बनाएंगे. अब ये जो सिनामोमम है, मोमम मीम मोम, ठीक है, मोम से निकला है, और आपको पता है कि मोम बहुत ज़्यादा लविंग और बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं. सो मोम में क्या है, केयरिंग है बहुत ज़्यादा और लविंग होती है. सो केयरिंग से मैंने निकाला है इसका साइंटिफिक नेम जो क्या है सिनामोमम जिलेंसियम. और भी आप कोई सा भी नेम याद कर सकते हैं, सिनामोमम अकासिया या ल्योराई, या अगर आपको कोई और इजी नेम लगता है तो आप वो भी याद रख सकते हैं. और दूसरी चीज़ आ जाती है कि सबकी मोम्स बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग होती हैं, और लविंग से ल्यूराइसी बनता है. इट्स मीन कि इस मोम और मोम लविंग और केयरिंग होती हैं. केयरिंग से सिनामोमम अकासिया या सिनामोमम जिलेंसियम या सिनामोमम ल्योराई, और लविंग से ल्यूराइसी जो कि इसकी फैमिली नेम को रिप्रेजेंट करता है. तो इस हिंट से आपको ये थोड़ा बहुत याद रहेगा, ठीक है. और नेक्स्ट चलते हैं कि इसका इंग्लिश नेम सिनामोमम ही है, बट इसका लोकल नेम क्या, यानी लोकली हम इसको क्या बुलाते हैं. सो आप सब लोगों के घरों में या तो इसे दालचीनी कहा जाता होगा, या इसको तेज़ का या तेज़ पत्ता जो है वो कहा जाता होगा. सो ये इसका लोकल नेम है, और लोकल नेम हर
इलाके से चेंज होते हैं। लाइक अगर इस इलाके में इसको दालचीनी कहा जाता है तो अगले इलाके में इसको कुछ और नाम दिया जाता है, बट इसका साइंटिफिक नेम सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम हमेशा सेम रहेगा, लोकल नेम चेंज होते रहते हैं। सो दालचीनी आई थिंक ज़्यादा कॉमन है लोगों के अंदर, तो ये इसके लोकल नेम हो गया। पार्ट चूज़ आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बार्क सी है, ठीक है, लकड़ी सी आपको नज़र आ रही है। सो ये ड्राइड इनर बार्क ऑफ द शूट, ये शूट की जो लकड़ी सी होती है उसकी ये बार्क है और ज़रा ड्राई की हुई है। लीफ भी आप इसे कह सकते हैं, बट आई थिंक कि अगर आप बार्क कहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। सो ज़्यादा वही मिलता है इसके साथ। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि अब हम इससे चलने वाले हैं मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना। मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक में क्या आ जाता है, मतलब वो करैक्टरिस्टिक जो आपको दिखाई देनी है। लाइक आपको उसका साइज़ नज़र आ रहा है, उसकी लेंथ विड्थ आप लोग देख पा रहे हैं, उसकी शेप, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, या उसकी ऑर्डर किस तरह से। सो ये जो चीज़ें हैं ये आप उसको देखने से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसका साइज़ देखें तो ये लॉन्ग ओब्लॉन्ग शेप में है, ठीक है। तो लॉन्ग और ओब्लॉन्ग जो है लंबा लंबा जो है आप ट्यूब लाइक शेप भी इसकी कह सकते हैं, बट क्योंकि ट्यूब ये हर तरह से पूरा राउंड नहीं है, कभी कभार ये इस तरह से मतलब टूटा हुआ भी होता है, तो आप ओब्लॉन्ग शेप जो है वो आप इसकी कह सकते हैं। साइज़ की बात करें तो साइज़ आपने जाहिर बात है कि जब हम इतनी सारी ड्रग्स जो है वो डिस्कस करेंगे तो आपको हर किसी का साइज़ याद नहीं रह सकता। तो साइज़ आपने उसको विजुअली मेमोराइज़ करना है। लाइक आप देख सकते हैं कि ये इतना लंबा है और अप्रॉक्सीमेटली ये जो लेंथ होगी वो तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर के दौरान होगी। तो आप 5 से 6 सेंटीमीटर लिख देंगे तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सो ये साइज़ की बात हो गई। शेप हमने देख लिया। ऑर्डर आप वैसे उसे सूंघेंगे, बट जब हमने लिखना होता है तो यानी इसकी कोई ना कोई तो ऑर्डर है ही है। या अगर आपके घर में दालचीनी है तो जाके उसको थोड़ा सा सूंघ लीजिए, उसकी ज़रूर कोई ना कोई अरोमा होगी। अगर उसकी कोई ना कोई खुशबू है तो आप लिख देंगे एरोमेटिक, अगर नहीं खुशबू है तो आप लिखेंगे नॉन एरोमेटिक। सो दालचीनी को अगर आप सूंघेंगे तो उसकी बहुत सी स्वीट अच्छी स्मेल होती है, तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। और स्वीट स्मेल भी आप कह सकते हैं। एक्सटर्नल कलर की बात करें तो ये येलोइश ग्रीन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये इनर साइड से येलोइश ग्रीन है और आउटर साइड से जो है ये ब्राउनिश सा कलर जो है वो देती है। लीफ के टाइप के, मतलब जो इसके पत्ते होंगे इसके प्लांट के, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, तो वो बहुत ही सिंपल सा लीफ होता है, थिक होता है और डार्क ग्रीन कलर का होता है। अब आपको पता है कि हमेशा लीफ का कलर तो डार्क ग्रीन ही रहना है, ठीक है। और बाकी लीव्स की करैक्टरिस्टिक्स में आपने लिखना है कि कहीं वो वैक्सी सा है, सॉफ्ट, सिंपल और थिक किस्म का लीफ है। कंपोजिशन की बात करें तो ये नॉन पाइनेट किस्म के लीव्स होते हैं। मतलब नॉन पाइनेट का मतलब ये है कि जिस तरह एक लीफ होता है ना, इस तरह से एक लीफ, तो उस लीफ के ऊपर जो इस लेफ़्ट साइड पे पैटर्न होता है वही पैटर्न राइट साइड पे भी होता है, ठीक है। मतलब दोनों का पैटर्न सेम होता है। फिर जब हम बात करते हैं ना सिनामोमम की लीव्स की, तो वो नॉन पाइनेट होता है, मतलब उसका लेफ़्ट साइड का पैटर्न राइट साइड के पैटर्न से बिल्कुल नहीं मिलता है। उनका मतलब डिफरेंट किस्म की पैटर्न वगैरह होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा बच्चों, तो अब मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रही हूँ इनके टेस्ट के बारे में। सो इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा और स्वीट किस्म का जो है उनका टेस्ट होता है। चाहे आपके घर में अगर हो तो आप इसको टेस्ट करके एक दफ़ा देख भी सकते हैं। मार्जिन्स भी हैं और एपिक्स भी इसका बना हुआ है, ठीक है। मार्जिन्स मतलब आपको लाइनिंग सी जो है वो इसके ऊपर नज़र आएगी, क्योंकि बार्क है ना, सो बार्क बिल्कुल स्मूथ सी नहीं होती है, उसके ऊपर मार्जिन्स लाजमी होते हैं। नेक्स्ट बहुत ही टारगेटिंग चीज़ आ जाती है, वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। आपको लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को याद रखना एक सिंपल चीज़ नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। और जब आपको बहुत सारी क्रूड ड्रग्स एक साथ याद रखनी हो फॉर द एग्ज़ाम पर्पस, तो उन सब के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है। सो उसके लिए आपको ज़रूर निमोनिक बनाना चाहिए। आई थिंक कि इन क्रूड ड्रग्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक तो वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो तो इसका साइंटिफिक नेम और फैमिली है, जिसका मैं निमोनिक बता चुकी हूँ आपको। और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके लिए निमोनिक्स मैंने यहाँ पर आपको बताया, स्वीट स्मेल वेरी फ्रेगनेंट सिनामोमम। ये एक ऐसा निमोनिक है जिससे आपको याद रहेगा कि ये निमोनिक सिनामोमम का था, और इससे आपको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट भी याद रहेंगे।
लाइक अगर मैं स्वीट की बात करूँ तो स्वीट से आपको इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी याद रहेंगी और इसका कंपोजिशन भी, यानी इसका टेस्ट स्वीट लाइक था। और स्वीट के एस से आपको याद रहेगा कि इसके अंदर शुगर्स हैं। शुगर अब मोनोसेक्राइड भी हो सकती है, डाइसेक्राइड भी हो सकती है, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, कुछ भी शुगर हो सकती है। सो जब कुछ भी याद ना रहे ना तो शुगर के भी कंपोनेंट्स लिखना शुरू कर दो, मतलब इसके अंदर मोनोसेक्राइड भी है, डाइसेक्राइड भी है, ट्राइसेक्राइड भी है, तो हर सब्सटेंस के अंदर शुगर तो लाजमी होगी और शुगर के कंपोनेंट्स इसी तरह ही होंगे ना, कभी मोनोसेक्राइड, कभी डाइसेक्राइड, कभी पॉलीसेक्राइड। सो ये चीज़ लिख दोगे, यानी स्वीट से आपको उसका टेस्ट भी पता लग गया, उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी पता लग गई और उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी। नेक्स्ट आ जाती है स्मेल, यानी इसकी स्मेल भी है। मैंने कहा कि इसके एरोमेटिक है, इसकी बहुत अच्छी सी स्वीट सी स्मेल है। स्वीट से आपको इसका टेस्ट वगैरह या इसकी स्मेल से भी पता लग रहा है और स्मेल के एस से आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च मीन वही पॉलीसेक्राइड और शुगर ही हो गया। सो ये एक और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वेरी के वी से बनता है वोलाटाइल ऑयल। सो जैसे कि मैंने बताया कि जो सिनामोमम अकाशिया होता है, सिनामोमम अकाशिया, ये वोलाटाइल ऑयल प्रोड्यूस करता है और इसके ऑयल को हम कहते हैं अकाशिया ऑयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल होता है क्योंकि ये एक एज अ एंटीसेप्टिक ऑयल जो है वो एक्ट करता है और इसके अंदर भी बहुत अच्छे से कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं। सो वेरी से वोलाटाइल ऑयल हो गया। फ्रेगरेंट से आप याद रखेंगे फ्लेवोनॉइड्स। फ्रेगरेंट से आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। फ्लेवोनॉइड्स वगैरह भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने परसेंटेज फ्लेवोनॉइड्स हैं या कितने परसेंट वोलाटाइल ऑयल होता है। ये चीज़ जो है वो आपको वैसे भी पेपर्स में जाके भूल ही जानी है। अगर आप याद कर सकते हैं सो वेल एंड गुड, इफ़ यू नॉट जस्ट फॉरगेट इट। सो फ्रेगरेंट से वोलाटाइल हो गए। और लास्ट में जो सिनामोमम वर्ड है, इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं बट ईजी है याद रखना। लाइक पहला वर्ड इससे बनता है, बहुत सारे कंपाउंड्स इससे आ रहे हैं, लाइक एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स। ये 4 किस्म के कंपाउंड्स हैं जो सिनामोमम के सी से बन रहे हैं। सिनामोमम का सी से क्या बनते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स वो कंपाउंड्स कौन कौन से इसके अंदर प्रेजेंट है? एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब एरोमेटिक वो कंपाउंड जिनसे खुशबू आती है। अब जाहिर बात है इसकी खुशबू है, इट्स मीन इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो खुशबू पैदा कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर किसी चीज़ के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होंगे तो उसकी खुशबू भी नहीं होगी, बट क्योंकि इसकी खुशबू है तो इट्स मीन इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके अंदर एलिफेटिक कंपाउंड है, ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स इसके अंदर आ जाते हैं और हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसके अंदर कुछ और 2-4 चीज़ें हैं, अगर आप याद कर सकें तो आप कर सकते हैं। जैसे सिनामिक अल्डिहाइड्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अल्डिहाइड एलिफेटिक कंपाउंड्स वगैरह के अंदर आ जाता है ना, सो आप उसको उसमें याद रख लेंगे, सिनामिक अल्डिहाइड। दूसरा है सिनामाइल एसीटेट, ठीक है। एसीटेट भी आई थिंक एलिफेटिक कंपाउंड में आ जाता है, सो सिनामाइल एसीटेट। और नेक्स्ट आ जाते हैं क्रायोफिनाइलिन। तो क्रायोफिनाइलिन जो इसके ना ऑयल का कंपोनेंट है, ठीक है। सो ये था ट्रिक उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को याद रखने के लिए। वेरी सिंपल, स्वीट, स्मेल, वेरी, फ्रेगरेंट, सिनामोन, ठीक है। स्वीट हमने उसकी स्मेल बताई, फिर वेरी, फ्रेगरेंट, अगेन हमने उसकी जो स्मेल है वो बताई और फिर हमने कहा सिनामोन। सो स्वीट से क्या हुआ, उसका हमें पता लगा कि उसके अंदर शुगर्स हैं, मीठा है यानी शुगर्स उसके अंदर हैं। स्मेल से हमें क्या पता लगा कि उसके अंदर स्टार्च भी है और उसकी बहुत अच्छी स्मेल भी है। और वेरी से मतलब वोलाटाइल ऑयल, से उसके अंदर है कौन सा ऑयल है, अकाशिया ऑयल है जो कि सिनामम अकाशिया से प्रोड्यूस हो रहा है। और फ्लेवोनॉइड्स इसके अंदर है और फिर सिनामम से बहुत सारे कंपाउंड्स इसके अंदर है, एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स और कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर ये जो लास्ट 3 जो मैंने कंपाउंड्स आपको बताए हैं ये आप लिखेंगे तो आपके पेपर के नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। सो सिनामिक अल्डिहाइड्स आप कह सकते हैं, अल्डिहाइड को याद रखना है एलिफेटिक कंपाउंड से। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं? सिनामिक अल्डिहाइड, सिनामाइल एसीटेट और क्रायोफिनाइलिन। सो वही चीज़ मैंने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लिखी हुई है कि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑक्सीडेटेड कंपाउंड्स हैं, सिनामाइल एसीटेट है, सिनामम के अंदर वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, म्यूसिलेजेस, शुगर, स्टार्च, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और सिनामम अकाशिया से अकाशिया ऑयल भी मिलता है हमें।
जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ ऑयल आगे उन्होंने बताए हुए हैं, जैसे सिनेमिक अल्डिहाइड्स मैंने बताया, और यूगिनॉल और पाइनिन और क्रायोफिनाइलिन, ये कंपोनेंट्स हैं उसके ऑयल के। बट अगर आप इनको याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, तो याद ज़रूर रखिए इनको। यूजेस की बात करते हैं। अब यूजेस जो है ना, वो मैंने उसको याद रखने के लिए आपके लिए वो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो दाल चीनी है या सिनामम है, ये हम यूज़ करते हैं चाय के अंदर। मोस्टली लोगों के अंदर लोगों के घरों में आई थिंक ये यूज़ हो रहा होगा। चाय में कब यूज़ करते हैं? आप लोगों ने ज़रूर नोट किया होगा कि जब भी घर में किसी को भी खांसी होती है, फीवर सा फील होता है या कुछ भी नज़ला ज़ुकाम से महसूस होने लगता है, तो फ़ौरन हम उसे दाल चीनी वाली चाय या अदरक वाली जो चाय है वो बना के देते हैं। क्यों देते हैं? इट्स मीन कि इस सिनेमम के अंदर, इस दाल चीनी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमें फ़ीवर से बचा रहे हैं, जो हमें कफ से, जो हमें नोज़िया वॉमिटिंग वाली जो स्टेट आ जाती है, फ़ीवर वाली जो स्टेट आती है, उससे बचाते हैं। सो इट्स मीन कि ये हमारे किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है? इट इज़ यूज़ फॉर द कोल्ड, जब हमें बुखार होता है। इट यूज़ फॉर द कफ बिकॉज इट हैज़ एंटी माइक्रोबियल एक्शन, सो इट इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द फीवर। इट आल्सो हेल्प इन द डायबिटीज़ और डायरिया कंडीशन, और इन द ओबेसिटी, और in the case of nausea or vomiting, as I explained. And it also used as a flavoring agent. सो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बुखार के ट्रीट के लिए हम जो है दालचीनी वाली चाय बनाएं। हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के लिए भी दालचीनी को चाय में डालते हैं, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चाय का। सो ये एक फ्लेवरिंग एजेंट भी है। साथ ही साथ ये एंटीसेप्टिक है, यानी माइक्रोब्स को किल कर देती है जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिससे हम फीवर से बच जाते हैं। और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो कि ब्रोंकाइटिस के लिए यूज़ होती है, क्योंकि ये हमें कफ से बचाती है। सो वो पेशेंट जिनको सर्दियों में नज़ला खांसी वगैरह स्टार्ट हुआ होता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो क्योंकि ये जो इन्फेक्शन हुआ होता है ब्रोंकाइटिस के अंदर, ये उसको ट्रीट करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर हैं, और एंटी डायबिटीज़ है, वो तो आपने पहले भी देख लिया है। ठीक है। सो सिनेमम ऑयल के भी कुछ यूजेस इन्होंने बताए हैं, जैसे वो फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, कार्बोनेटिव है, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर भी पाई जाती हैं। सो यहाँ तक था ये हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और डिफरेंट किस्म के निमोनिक्स बना के आपको ये चीज़ समझाऊँ। सो आई होप कि आप लोगों को आज के अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आगे के हम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कवर कर सकें। सो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब किए हुए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल अप, अल्लाह हाफिज़।